Good evening, class. Welcome to Board of Open Schooling and Skill Education Sikkim. I am Neha Sharma, taking class secondary, subject Business Studies of Module 6, Consumer Awareness, lesson number 19, Rights and Responsibilities of Consumers. देखो, कंज्यूमर हम सबको पता है कि क्या होते हैं. कोई भी पर्सन जो परचेज कर रहा है गुड एंड सर्विसेज अपने पर्सनल यूज के लिए, वो कंज्यूमर है. और उस प्रोडक्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट वो प्राइस दे रहा है. ठीक है, वो कंज्यूमर है. मतलब जो चीजों को कंज्यूम कर रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? कंज्यूमर. तो आज हम बात करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि मीनिंग ऑफ कंज्यूमर क्या है डिटेल में, कंज्यूमरिज्म क्या है. ठीक है, देखो, जब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की, ठीक है, तो बहुत सारे कुछ राइट्स हैं कंज्यूमर के जो कंज्यूमर को पता होना चाहिए. ठीक है, साथ ही साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या? कुछ ड्यूटीज है कंज्यूमर्स की जो उनके पार्ट पे उन्हें कंप्लीट करनी पड़ती है. ठीक है, तो आज की क्लास में हम कंज्यूमर और उसके राइट्स और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पढ़ेंगे. See, every day we all buy one thing or another to satisfy our needs and wants. Manufacturers and traders offer so many products and services to us, and we all buy those things or services as per our requirement by paying a certain price. That make us customer, or we can say consumer, of that product or service. We must understand that consumer is considered as the king in the free market economy. But many a time it is noticed that certain greedy businessmen try to exploit consumers by supplying poor quality, overcharging, adulteration, etc. Consumers are unaware about their rights and responsibility. So first of all, let's understand the meaning of consumer. Generally, a person who purchases goods and services for his personal use and not for sale or any other commercial use is known as consumer, or we can say that consumer is the final user of the goods or services. A person who bought things to be used, consumed by himself, herself, or by anyone else on his or her behalf is also known as consumer. सो बेसिकली हम कंज्यूमर किसे कह रहे हैं? कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो होता है जो चीजों को कंज्यूम करता है. ठीक है, एक पर्सन जनरली अगर हम देखें तो देखो, कोई भी पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए और उसके अगेंस्ट पैसा दे रहा है, तो वो और उसको आगे कहीं सेल नहीं कर रहा, तो हम उसे क्या कह रहे हैं? हम उसे कहते हैं कंज्यूमर. ठीक है, अब कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर जब कोई चीज खरीदता है तो वो अपने लिए भी यूज करने के लिए भी ले सकता है. ठीक है, या कोई उसके बिहाफ पे भी यूज कर सकता है. जब वो कोई और उसके बिहाफ पे यूज करेगा तो हम उसको भी एज अ कंज्यूमर कहेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैन buys food item for his family member, he would also be called as a consumer. Therefore, it is not true that a person who is buying the things but not consuming or using it himself is not a consumer. Any person buying the good with the purpose of selling them to someone else cannot be called as a consumer. A consumer can be individually or a group of people. Goods can be both consumer goods like bread, butter, soap, biscuits, salt, shoes, etc., and durable goods like TV, car, refrigerator, etc. सर्विसेज, ये हमने गुड्स की बात की. सर्विसेज की बात जब हम करते हैं तो इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एंटरटेनमेंट, ट्रेवल, टेलीकम्युनिकेशन, एक्सेट्रा. नाउ अभी हमने बेसिक
मीनिंग समझा कि कंज्यूमर क्या है, ठीक है। नाउ अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कंज्यूमर को अलग अलग तरीके से डिवाइन किया गया है। आप स्क्रीन पे देखिए, any person who buy any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment. It includes any use of such goods when such good is used is made with the approval of buyer, but does not include a person who obtained goods for resale or for any commercial purpose. Any person who hires or avail any service for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment. So ये अलग अलग डेफिनेशंस जो है वो दी गई हैं कंज्यूमर एक्ट के अंदर, ठीक है। अब देखो, कोई भी पर्सन है जो गुड को परचेज करता है, वो गुड्स को किसके अगेंस्ट मतलब गुड्स जब लेता है, अब कोई भी चीज अगर आप किसी से परचेज करते हो, आप जब कभी शॉप पे जाते हो, किसी से कोई चीज परचेज करते हो तो उसको रिटर्न में पैसा देते हो, राइट। अब देखो कई बार क्या होता है, सपोज कि कोई सेलर आपका नोन है, ठीक है, किसी दुकानदार को आप जानते हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपने उससे कोई चीज खरीदी, ठीक है, और आपने उसका या तो पूरा पेमेंट कर दिया, ठीक है, या फिर अगर सेलर आपका नोन है तो आपने उन्हें कह दिया जी क्या कहते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीक तक पे कर दूंगा इसका जो अमाउंट है, ठीक है, मतलब या तो विच हैज बीन पेड, ठीक है, या फिर पार्टली पेड, ठीक है, या पार्टली प्रॉमिस्ड, आपने कहा कि जी मैं नेक्स्ट वीक पे कर दूंगा, या हो सकता है कि आप ये भी कह दें कि जी मैं मेरे पास अभी 200 रुपये अवेलेबल हैं, तो मैं 200 रुपीज अभी आपको सपोज कोई चीज आपने खरीदी 400 रुपए की, तो आपने उनसे कह दिया जी मेरे पास अभी 200 रुपये अवेलेबल है, 200 रुपये मैं आपको अंकल बाद में दे दूंगा, ठीक है, तो पार्टली पेड भी हो सकता है। अब जो कंज्यूमर कोई गुड खरीद रहा है, हो सकता है अब आपने कोई चीज खरीदी, ठीक है, आप घर पे जाएं, ठीक है, और आपके घर का कोई मेंबर ये बोले कि भाई उसे वो चीज पसंद आ जाए और वो उसको यूज करे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, जब जब आप नहीं यूज कर रहे, आप दूसरा बंदा जो घर का मेंबर है वो चीज को उसने आपसे उसको अच्छा लगा, उसने कहा जी भाई ये चीज मुझे दे दो, मैं यूज करना चाहता हूँ, तो जब वो उसको यूज करेगा तो बायर के अप्रूवर से, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर। सो ऐसे ही मतलब अलग अलग मीनिंग्स के साथ अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई है कंज्यूमर की, ठीक है। आप सारी डेफिनेशंस, आपको ये तीनों डेफिनेशंस जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो तीनों डेफिनेशंस जो है वो याद करनी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब मीनिंग ऑफ कंज्यूमर आपसे पूछा जाए तो आप बेसिक डेफिनेशन में कंज्यूमर को बताएं, और अगर स्पेसिफिकली ये पूछा जाता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कौन कौन सी क्या डेफिनेशन है कंज्यूमर की, तो ये तीन डेफिनेशन जो हैं दी हुई हैं, और ये तीनों डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, ओके। It includes any beneficiary of service when such service are availed of with the approval of the person concerned, but does not include a person who avail of such service for any commercial purpose. So this is all about consumer. Now let's understand there is another term, that is consumerism. Just go through with it. Consumerism means a social movement leads by a consumer in order to protect themselves against the unfair trade practice used by the manufacturer or seller. Consumerism aims at protecting the consumer from such malpractice like black marketing, holding, adulteration, misleading advertisement, short waits, and measures, etc. An individual consumer may find it difficult to protect it if he or she is cheated or exploited in any such way. So there is a need for united consumer or consumer organization to help them to raise their voice. So we can say that consumerism is a organized efforts of the consumer to get the secure against the unfair marketing methods and gain maximum consumer satisfaction.
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। देखो जब हम मार्केट में गुड्स परचेज करने के लिए जाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज जो है, सपोज आप जब कभी मार्केट में कोई चीज लेने गए होंगे तो कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा हो जाता है कि आपने कोई चीज ली, ठीक है, और सपोज आपने कोई चीज ली, उसकी लेबलिंग, अब सपोज वो बहुत टाइम से चीज रखी हुई है, उसकी लेबलिंग कहीं से रिमूव हो गई जहाँ पे मेंशन नहीं है कि भाई उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ये एक्सपायरी डेट क्या है, और आप उस चीज को घर ले आए, घर लाए, तो आपने देखा कि भैया वो चीज तो जब आपने उसको यूज करना चाहा तो आपने देखा भैया ये तो थोड़ी स्मेली हो रही है या ठीक नहीं है, आपको लगा कि भाई कोई ये एक्सपायरी प्रोडक्ट चला गया, ठीक है, तो एक्सपायरी प्रोडक्ट तो नहीं आ गया, तो क्योंकि आपके पास वहां पे वो लेबलिंग मिसिंग थी, तो लेबलिंग सभी उसमें होती है, लेकिन किसी रीजन से सपोज कई बार क्या होता है चीजें रखी रखी या किसी और चीज के कांटेक्ट में आके मिट जाती है चीजें, जैसे पेपर पे कुछ लिखा है और वो मिट जाता है, नहीं आपको आप उस टाइम देख पाए, आपको नहीं पता चल पाया, या शॉपकीपर ने भी आपको बोला कि नहीं, आपने पूछा भी कि भाई दिख रहा है, लेकिन शायद आपने देखा कि भाई उसमें नहीं लिखा हुआ, और एक हम खरीद लेते हैं जनरली, तो हमने लिया और आप लेके आ गए, जब आपने घर आके यूज करना चाहा तो आपने देखा कि भाई ये तो थोड़ा खराब लग रहा है, इस ये मे बी दिस प्रोडक्ट इज एक्सपायर्ड। सेम वेज कई बार क्या होता है कि आपने कोई चीज, सपोज करो आपने सब्जी वाले से एक ट्रस्ट पे खरीद लिया कि जी मुझे 5 किलो आलू ले दे दो, आपने आलू लिए 5 किलो, उसने आपने कहा भाई तोल दिया तुमने इसको ठीक से, उसने कहा भैया मैंने ठीक से तोल दिया, वेट ठीक है बिल्कुल, आप घर आए, आपके घर में भी एक वेजिटेबल मेजरिंग मशीन है, आपने कहा चल यार मैं इस पे भी देख लेता हूँ, जब आपने देखा तो आपने ये देखा कि भैया ये तो 4 किलो 800 ग्राम है, 200 ग्राम कम है, मतलब ये तो हमने बहुत माइनर सी मैंने आपको एग्जांपल दिया क्वांटिटी का, बट मतलब लेकिन जब आपने 5 किलो की पेमेंट की तो 200 ग्राम भी कम क्यों मिला, है ना, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो है वो कंज्यूमर के साथ हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो ऐसी कुछ जो सेलर्स होते हैं वो इस तरीके की प्रैक्टिसेस भी कर देते हैं जो अगेंस्ट होता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट में। तो कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर ऑफ द राइट ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है, तो 7 राइट्स हैं, ठीक है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, right to choose, right to be heard, right to seek redressal, right to consumer education. Rights are the privileges which are given to any person. As a citizen of India, we all have many rights. Similarly, as consumers, also we have been given many rights. Consumer exploitation is something against which every consumer needs to be protected. If the consumers are aware of their right, they will feel confident to take action if they feel cheated. Consumer satisfaction is the main focus of the companies these days. Still, there are many ways in which many businesses are cheating the consumers. So, as a consumer, we must be aware of the rights and understand them how to use them. The Consumer Protection Act 1986 confers the following rights to consumer in order to safeguard the interest of the consumers and to empower them to fight against the exploitative and unfair trade practice of the seller. तो जैसे जैसे every person has a एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी हैव फंडामेंटल राइट्स, वैसे ही कंज्यूमर की जब बात करते हैं तो वी हैव ऑल दिस राइट्स एज अ कंज्यूमर। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन इन डिटेल। फर्स्ट इज राइट टू सेफ्टी। अब राइट टू सेफ्टी का क्या मतलब? राइट टू सेफ्टी का मतलब देखो, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो जिनमें जो जब मैन्युफैक्चरर से उन्हें प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो हार्मफुल ना हो किसी भी वे में, ठीक है, सेफ होना चाहिए वो प्रोडक्ट। अब जैसे प्रेशर कुकर का एग्जांपल लेते हैं, प्रेशर कुकर है, ठीक है, डेली हम लोग प्रेशर कुकर अपने घरों में यूज करते हैं, ठीक है, तो अब जैसे जो भी मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूसर्स हैं उन उसके प्रोडक्ट के, तो उसको काफी केयरफुल रहना पड़ता है कि भाई जो भी वो
प्रोडक्ट मतलब जो भी जैसे प्रेशर कुकर है, देखो प्रेशर कुकर जो है वैसे तो हम डेली यूज करते हैं, बट मिसहैप्स भी बहुत हो जाते हैं। कई बार उसमें कोई ऐसा लूपहोल रह गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम रह गई, प्रॉपरली पुअर क्वालिटी यूज करी गई प्रोडक्ट में और कुछ ऐसा हार्म हो गया, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कुकर फट भी जाते हैं, राइट। ऐसे ही कोई भी आपका, जैसे आपका ये आप मिक्सी यूज करते हैं, ग्राइंडर्स जो यूज करते हैं, तो ये सब कुछ ऐसे आइटम्स हैं, और मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी ले लो, तो मतलब मैन्युफैक्चर को ये श्योर होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए किसी भी पर्सन की लाइफ के लिए, तो वो सेफ होना चाहिए। तो राइट टू सेफ्टी की जब हम बात करते हैं, तो एवरी कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द गुड्स और सर्विसेज which may prove to be harmful for their life or property. For examples हमने लिए electrical appliances manufactured with low material do not comply with safety norm may be very serious to the consumer. Consumer has a right to be safe against the loss caused by such products. Product or services provided by the seller should take care of the immediate needs and the long-term interest of the consumer. Consumer must be educated that before purchasing good, they must be insist on the quality and the guarantee of the product or service. They should preferably purchase good products having ICI, egg marks, etc. तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, देखो कुछ मार्क्स जो है, स्टैंडर्ड मार्क्स जो हैं वो कुछ प्रोडक्ट्स पे जो है वो होने जरूरी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप ज्वेलरी लेने जाते हैं, ठीक है, कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ ज्वेलरी लेने गए होंगे, तो अभी आपने देखा कि हमेशा क्या बोला जाता है, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू भी आता है, हमें खुद भी घर में भी हम कहते हैं कि जब ज्वेलरी लो तो जरूर हॉलमार्क चेक करके लो, जो उसका मार्क होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक कुछ प्रोडक्ट्स में कुछ कोई ना कोई मार्क्स जो है वो बता दो। अब तो प्रेफरेंस है कि जब कंज्यूमर भी एजुकेटेड होना चाहिए, कंज्यूमर को भी इतना पता होना चाहिए कि जब वो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स ले जो मार्क अप्रूव्ड है, तो वो उसमें वो प्रॉपर मार्क चेक करके ले, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द डेट देखो मैन्युफैक्चर की भी ड्यूटी है कि वो जो कंज्यूमर को गुड प्रोवाइड कर रहा है वो किसी भी तरीके से उसकी लाइफ को लेके या उसकी प्रॉपर्टी को लेकर हार्मफुल नहीं होना चाहिए। तो राइट टू सेफ्टी की तो सबसे पहले है, जो भी चीज है वो सेफ तो होनी चाहिए ना। अब उसको यूज करके अगर कोई नुकसान ही हो जाए तो फिर फायदा नहीं। So products or service provided by the seller should take care of the immediate need and the long term interest of the consumer. Or consumer should also be educated before purchasing and he should also insist on the quality, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। देखो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मतलब जो भी प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चर है, वो शुड प्रोवाइड ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर। अब वो इंफॉर्मेशन कैसी कि भाई अबाउट कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ठीक है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है। अगर आपने देखा होगा, देखो जब आपने कभी कोई चिप्स का पैकेट लिया होगा तो आपने देखो चिप्स के पैकेट के पीछे सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि भाई इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। साथ ही साथ उसमें मेंशन होता है कि भाई इस मैन्युफैक्चरिंग डेट इस प्रोडक्ट की ये है और इस दिन ये एक्सपायर हो जाएगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो कंज्यूमर का राइट है, कंज्यूमर को पता होना चाहिए। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मोस्टली हर प्रोडक्ट में ही अगर आपने देखा होगा कि लेबल्स लगे होते हैं, ठीक है, उस लेबल्स में पूरी इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट्स के बारे में। तो कंज्यूमर का राइट है कि उसे सारी चीजें उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी वो खरीद रहा है वो पता होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, देखो कुछ प्रोडक्ट, अब जैसे कई बार क्या होता है, अगर आपने देखा हो कि रोड साइड्स पे कई बार जैसे कोई कैंडी बेच रहा है, ठीक है, या फिर वो छोटी छोटी गोलियां वगैरह बेच रहे होते हैं। अब अगर हम उनके ऊपर बात करें तो उनके ऊपर तो कोई लेवल होता नहीं। तो अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो वहां पे कैसे पता चले कंज्यूमर को कि भाई उसका क्या प्राइस है। अब उस केस में क्या होता है, जब उसके ऊपर को, जब जिस चीज के ऊपर भाई कोई चीज खरीदी उसके ऊपर इंफॉर्मेशन है, तो कंज्यूमर उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीजों को, जो प्राइस उस पर लिखा है, अब या तो वो सेलर उसे एमआरपी पे बेचेगा या फिर मे बी को डिस्काउंट करेगा, बट जो एमआरपी है उससे
कंज्यूमर को आइडिया लग जाता है कि इसकी क्या प्राइसिंग है। बट अब जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि कुछ सेलर्स जो जैसे रेडी वगैरह पे सेल करते हैं, जैसे कैंडीज या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, जैसे वो देखा होगा छोटी छोटी गोलियां, ठीक है, सेल कर रहे होते हैं। तो अब अगर हम उन प्रोडक्ट्स की बात करें तो उन पे तो कुछ मेंशन ही नहीं होता, वो तो बस बता देते हैं जी ये तो 50 ग्राम है जी, 30 रुपए का, 40 रुपए का। एंड आप भी सोचते हो कि चलो भाई परचेज कर लेते हैं 30-40 रुपए के लिए, क्या ही हम बोलेंगे, तो हम परचेज भी करते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में अगर जो सेलर है अब वो 30 रुपए की चीज 50 रुपए में बेचते या 10 रुपए की चीज 30 रुपए में बेचते तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब ऐसा भी चीज हो जाती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है कंज्यूमर का, प्रॉपर कंज्यूमर का राइट है कि उसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एवरी कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी फुल्ली इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। अब जो हम बात कर रहे हैं कि कौन, देखो, फुल्ली इन्फॉर्म्ड अबाउट द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन वो क्या है कि देखो क्वालिटी, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, जो क्वांटिटी वो खरीद रहा है क्वांटिटी वो क्या है, प्राइस, यूसेज क्या है, प्योरिटी, इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये इंफॉर्मेशन जो है वो कंज्यूमर को पता होनी चाहिए। दिस इंफॉर्मेशन विल एनेबल द कंज्यूमर टू मेक अ वाइज डिसीजन अबाउट चूजिंग द राइट प्रोडक्ट। अब इन सब इंफॉर्मेशन के बेस पर ही तो कंज्यूमर जो है उसको क्या फायदा होगा कि वो जो भी चीज जो डिसीजन लेना है उसे परचेजिंग का, वो बेटर ले पाएगा। नेक्स्ट अवर राइट इज राइट टू चूज। अब राइट टू चूज में क्या है, देखो कंज्यूमर का राइट है कि हमें, देखो कंज्यूमर के पास ये राइट होता है कि वो कुछ भी जो है अपनी पसंद का खरीद सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ सेलर्स कई बार क्या करते हैं शॉपकीपर्स कि आपने सपोज कि कोई प्रोडक्ट मांगा, वो उस प्रोडक्ट को ना दिखा के, उनके पास होगा वो प्रोडक्ट भी अवेलेबल, बट उन प्रोडक्ट को ना दिखा के वो क्या कहेंगे कि जी ये देख लीजिए ये बेटर है। ये आपके साथ भी कभी हुआ होगा जब आप कभी शॉप पे गए होंगे। अब सपोज आपने उनसे कोई ऐसी चीज मांगी, कोई सपोज आपने उनसे कहा कि भाई मुझे कोई क्रीम चाहिए इस कंपनी की, तो सम टाइम इट हैपेंस ना कि वो उनके पास अवेलेबल होती है वो क्रीम, लेकिन वो उसकी बजाय बताने लग जाएंगे कि आप ये वाली देख लो, ये ज्यादा बेटर है। जैसे उससे कोई बेटर कोई कोई और कंपनी आई है जिसकी प्राइसिंग जो है ज्यादा है, तो वो आपको बोलेंगे जी इससे बेटर है, आप ये देख लीजिए। मतलब जो प्रोडक्ट आपको एक्चुअली लेना है, आप उसके पास गए भाई मुझे लैक्मे की एक क्रीम चाहिए, पर वो लैक्मे की क्रीम ना दिखा के आपको अदर ब्रांड्स की क्रीम दिखाने लगे, जी आप ये देखिए, ये आपकी मेबिलिन की ले लीजिए, बायोटिक की ले लीजिए, ठीक है, वुमेन ब्रांड्स मतलब वुमेन कॉस्मेटिक के एग्जांपल्स है। तो आप जो है वो कई बार जो है सेलर ऐसे भी करते हैं, और आई थिंक ये सब हम सब ने एक्सपीरियंस किया, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि यूजुअली जो है कई बार जो सेलर, कुछ सेलर्स, नॉट एवरीबडी, बट कुछ सेलर्स ऐसा भी करते हैं कि जो प्रोडक्ट एक्चुअली रिक्वायर्ड है उसे छोड़ के आपको दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जो है वो डिस्ट्रैक्ट या फिर फोर्स करते हैं कि भाई आप ये ले लो, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ऐसे फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, कस्टमर के पास जो है वो राइट है। वैसे देखो फोर्सफुली कोई किसी को कुछ ऐसे नहीं दे सकता, एट द एंड तो अगर कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता कि भाई आपको लेना ही लेना है, ठीक है, हम मना भी कर सकते हैं। बट जो एक कंज्यूमर है उसके पास एक राइट है कि वो चूज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। सेल्समैन या कोई भी जो है वो ऐसे फोर्स किसी चीज का नहीं होना चाहिए। सो एवरी कंज्यूमर हैज अ राइट टू चूज एनी प्रोडक्ट services of their own choice from the variety of product and services at the competitive price. No seller can influence the choice of the consumer. Therefore, the seller must offer a variety of product to the consumer and allow them to choose their desired product. देखो यहाँ पे जब हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझा, तो यहाँ पे हमने ये चीज समझी कि भाई हमने उन शॉपकीपर से हमने मांगा कि भाई हमें ये ऑप्शन चाहिए और उसने हमें अदर ऑप्शंस दिखाए, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये कि सेलर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टमर्स को जो भी, ये नहीं कि वो जो उसका कोई मनपसंद का कोई चीज है तो सेलर के कि भाई ये ब्रांड उसे पसंद है तो उसने कह जी ये वाला
जी हमने कहा कि हमें कोई कोल्ड क्रीम दिखा दो, तो जो उसके फेवरेट ब्रांड की उसने वो दिखा दी, उसको वो सारे ऑप्शंस जो है वो कस्टमर्स को, कंज्यूमर को प्रोवाइड करना चाहिए विद ऑल द ब्रांड्स एंड जो भी उनकी अपनी प्राइसिंग है, सो दैट कस्टमर कैन चूज फ्रॉम ऑल दैट वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। कंज्यूमर को जो भी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग समझ में आए वो उसको चूज कर सके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई किसी ने मांगा तो एक ही बस दिखा दिया, नहीं, जो भी वैरायटी अवेलेबल है, जो भी जो है अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, वो सब कंज्यूमर के सामने रखे जाने चाहिए, सो दैट वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको चूज कर पाए। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू बी हर्ड। अब देखो, सबसे पहले हमने बात की थी ना राइट टू सेफ्टी की, जिसमें हमने बात किया था कि कुछ ऐसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं जो बड़े केयरफुली मतलब मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं, सो दैट कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि किसी को हार्म हो जाए या किसी की प्रॉपर्टी को हार्म हो जाए, किसी की लाइफ को हार्म हो जाए। ठीक है, जैसे कि प्रेशर कुकर का हमने लिया था, जनरल सब डेली ऑलमोस्ट हर किसी के घर में यूज होता है। अब वैसे तो देखो डेली यूज होता है, बट सब टाइम इट हैपेंस कि भाई कुछ कोई ऐसा लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर दिया या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण कुकर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसके हिसाब से किसी को नुकसान हो गया, तो ऐसा भी हो जाता है। तो राइट टू बी हर्ड को हम इससे थोड़ा रिलेट करेंगे कि अब सपोज करो कि कोई ऐसा कुछ भाई प्रेशर कुकर में कुछ बनाया जा रहा था और उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम हुई या कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज कर दिया जो शायद ठीक से काम नहीं किया, जिसकी वजह से जो है वो कुकर जो है वो फट गया या कुछ भी प्रॉब्लम हुई। अब वो जो प्रॉब्लम हुई, तो अब कंज्यूमर क्या करेगा भाई? देखो, कोई नुकसान भी मेजर हो सकता है, मे बी नहीं हुआ। हम अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ कुकर फटा तो, लेकिन लाइफ को तो किसी की प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन दीवार खराब हो गई, वो कुकर तो टूट ही गया, फट गया। ठीक है, तो छोटे मोटे डैमेजेस घर के अंदर आए। अब जब प्रॉब्लम आई उस प्रोडक्ट में, तो कंज्यूमर क्या करेगा भाई? कंज्यूमर जाके बोलेगा भाई दुकान वाले को कि भाई ये कैसा कुकर दिया आपने, इसे तो हमारी छत तोड़ दी। ठीक है, अब वो कहेगा भाई, अब मैन्युफैक्चर वो जो शॉपकीपर है वो कहेगा भाई भाई मैंने तो ये कुकर बनाया नहीं है, ये कुकर तो भाई जी मैंने होलसेलर से उठाया है। अब कंज्यूमर जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर कहेगा जी इसमें मैं तो क्या ही कह सकता हूँ, मैंने तो खुद ही मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट लिया, मैंने तो नहीं बनाया, मैंने तो उससे क्वांटिटी ली है। आप मैन्युफैक्चर के पास गए, मैन्युफैक्चर ने बोला कि भाई मैंने तो इसमें से कुछ पार्ट जो है वो आउटसोर्स किए थे, तो अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता। तो अब कंज्यूमर बार बार इधर से उधर जा रहा है। ठीक है भाई, उसका कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। उसने कोई प्रोडक्ट लिया, उसमें प्रॉब्लम आई, उसको नुकसान हुआ, तो उसका कोई सुनने वाला, सुनवाई कहाँ है उसकी? वो तो एक से जगह दूसरी जगह पे घूमता रहा। तो राइट टू बी हर्ड में अगर हम बात करते हैं, तो एवरी कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी हर्ड, that is to file a complaint against any unfair practice or dissatisfaction with the goods or services. This right make it mandatory for the companies to set up the consumer grievances cells so that the aggrieved consumer can file their complaint. Many consumer organization NGOs are working towards helping the consumer to come forward to file their complaint. So basically, being the consumer has the right to be heard. उसकी बात जो है वो, उसकी सुनवाई होनी चाहिए, वो कंप्लेंट कर सके। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओस भी हैं जो इसमें हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, टू educate the consumer to how in filing all these complaints and all। और कंपनीज को भी मैंडेटरी कहा गया है कि भाई कंज्यूमर ग्रीवेंसेस सेल बनाओ, सो दैट अगर किसी कंज्यूमर को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी कंप्लेंट कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू सीक रिड्रेसल। अब यहाँ पे क्या होता है, राइट टू सीक रिड्रेसल में क्या है कि भाई सॉल्यूशन क्या है, एक्शन क्या लिया गया। ठीक है, जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन, अब जैसे हमने पढ़ा राइट टू हर्ड में कि ऐसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो राइट टू सीक रिड्रेसल में क्या है कि उसका सॉल्यूशन क्या है, एक्शन क्या है। सो एवरी कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेट रिलीफ in the form of compensation, etc.
in case the product or services purchased by them is defective or deficient, compensation can be in the form of refund of money, replacement of good, removal of the defect as per the demand or the satisfaction of the customer. तो भाई प्रॉब्लम आई तो उसको सोल्यूशन क्या है भाई, या तो उसको दूसरा प्रोडक्ट दिया जाए, उसी सेम चीज वापस दी जाए, दूसरा नया फ्रेश प्रोडक्ट दिया जाए, या फिर रिफंड दिया जाए, ठीक है, या फिर जो डिफेक्ट आया उसको रिमूव करके जो है वो सही करा जाए। तो बेसिकली कंपनसेशन दी जाए कंज्यूमर को, कस्टमर को। अब वो किस फॉर्म में हो सकती है, वो रिफंड भी हो सकता है, रिप्लेसमेंट भी हो सकती है, और न्यू रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है और लास्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में क्या है कि भाई कंज्यूमर को पता तो होना ही, कंज्यूमर को पता तो हो कि भाई उसके पास ये सारे राइट्स हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंज्यूमर जो है उसको पता होना चाहिए इन राइट्स के बारे में। भाई इन राइट्स के बारे में पता होगा तभी तो वो उस राइट्स को यूज करेगा, ठीक है। सो एज पर CPA, एवरी कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी एजुकेटेड अबाउट द कंज्यूमर लॉज एंड राइट्स, ओके। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कह रहा है कि जो कंज्यूमर है वो एजुकेटेड होना चाहिए अबाउट द कंज्यूमर लॉज एंड राइट्स। जब पता ही नहीं होगा कि क्या लॉज बनाए हैं, राइट्स बनाए हैं। देखो जब हम लॉज और राइट्स की बात करते हैं तो वो ऐसे ही नहीं बन जाते, उनके पीछे बहुत सालों के डिस्कशंस होते हैं, बहुत सालों की मतलब डिसीजन मेकिंग होती है। सब चीजों को ध्यान में रखकर ये राइट्स लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है। अब उनका फायदा ही क्या कि अगर उसका जो भी लॉज बनाए हैं या जो भी राइट्स हैं, अब उनको पता ही नहीं होगा, बेनिफिट ही नहीं पता कि क्या है, अपने राइट्स ही नहीं पता, तो उनको व्हाट इज द यूज ऑफ मेकिंग दैट लॉज एंड राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कंज्यूमर मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट देयर राइट। कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि उसके राइट्स क्या है, क्या लॉज हैं, क्या राइट्स हैं। Consumer have a right to acquire knowledge about their rights, responsibility, and the relief or remedies available to them. The Government of India has taken many initiatives to educate the citizens about their rights as consumer through media, social education. Many consumer organizations and businesses are also taking active parts in educating the consumer. हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो बहुत सारे ऐसे वेज यूज कर रही है, सोशल मीडिया के थ्रू कंज्यूमर्स को अवेयर करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेसेस भी हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन एजुकेटिंग द कंज्यूमर्स। सो दीज आर द राइट्स of the consumer, okay. So a consumer must be aware of all these rights. Now ये तो हमने बात की कि राइट्स क्या है कंज्यूमर्स की। अब देखो कंज्यूमर्स की भी तो कुछ ड्यूटीज है, कंज्यूमर्स की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उनको ध्यान में रखनी है, सो दैट प्रॉब्लम्स हो ही ना, ठीक है। सो वी हैव रेड अबाउट द वेरियस मेजर are being taken by the government regarding the consumer protection. And also Consumer Protection Act has been passed out, which provides many rights to the consumer. The consumer rights alone cannot achieve the objective of consumer protection if the consumers are unaware about their responsibility or fail or to fulfill them. Rights and responsibility go hand in hand. A cautious consumer who has the knowledge of both his rights and responsibility has a less chance of being exploited. So the consumer, he must be aware about his responsibilities and must follow them. So क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होना बहुत जरूरी है कंज्यूमर का, तभी तो देखो सिर्फ राइट्स पता करने से कुछ नहीं होना, ठीक है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर्स की भी तो है, और दोनों को मिला के हम अगर अपने राइट्स भी हमें मालूम है और हम एज अ कंज्यूमर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमारी हैं हम उन्हें फुलफिल करते हैं, तो हम बच सकते हैं जो भी एक्सप्लॉयटेशंस हैं, जो भी माल प्रैक्टिसेस या जो भी ट्रेड अनफेयर डील्स है, उनसे बचा जा सकता है अगर हम राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही से निभाएं। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर की? कॉशियस कंज्यूमर,
Be a quality conscious consumer. Insist on cash memo. Exercise consumer rights. Filing complaints and seeking redressal. Don't get misled by advertisement. Be aware. Form consumer society. Respect the environment. Honest in dealing. Careful use of product. So सबसे पहला है, let's understand in detail, cautious consumer. The consumer has to be cautious before buying a product. He must not blindly trust the seller. The consumer must insist on getting complete information about the product or service before purchase. Consumers should read the information about the product very carefully and use them as per the instruction given by the manufacturer. Product information such as quantity, date of manufacturing, expiry date must be read full carefully before making purchase. So देखो कंज्यूमर को भी जो है ना वो थोड़ा कॉशियस होना जरूरी है बिफोर बाइंग द प्रोडक्ट्स. क्यों? उसे भी पता होना चाहिए बिफोर बाइंग, जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, सो कुछ चीजों का पता होना जरूरी है. तो जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज किया जाए तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर कि वो उसे प्रॉपरली चेक कर ले. अब वो चाहे इन टर्म ऑफ क्वांटिटी हो, चाहे वो उसकी एक्सपायरी डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, तो ये सब चीजें जो है बिफोर परचेजिंग कंज्यूमर जो है वो इस चीजों के बारे में, इन चीजों को प्रॉपरली चेक करके ही गुड्स को जो है वो परचेज करना चाहिए. बी अ क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर. The consumer must not compromise with the poor quality product. The problem of supply of adulterate, standard of duplicate products can be solved if the consumer are quality conscious and look for quality marks like SI mark for electric appliances, pressure cooker, etc. Egg mark for food items, hallmark for jewelry, wool mark for woolen products, etc. before purchasing the product. So क्वालिटी चेक जो है वो होना बहुत जरूरी है. ठीक है, अ कंज्यूमर मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी. क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. ठीक है, कुछ मार्क्स की बात अभी हमने पीछे भी समझा था कि कुछ मार्क्स जो है वो का ध्यान रखा जा सकता है. जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक आइटम परचेज कर रहे हैं जैसे प्रेशर कुकर या कुछ, तो ICI मार्क जो है वो होने चाहिए. ठीक है, वो फूड आइटम्स के लिए एग मार्क है, ज्वेलरी के लिए हॉल मार्क है. ठीक है, आपने देखा होगा वूलन प्रोडक्ट्स पे, कई प्रोडक्ट्स पे वूल मार्क का साइन होता है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जो है क्वालिटी चेक्स मार्क्स हैं ये. तो ये जो है वो चेक किए जा सकते हैं बिफोर परचेजिंग एंड इट शुड बी केप्ट इन द माइंड दैट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज शुड नॉट बी देयर. ठीक है, क्वालिटी चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज इंसिस्ट ऑन कैश मेमो. देखो कैश मेमो क्या, बिल. देखो कई बार क्या होता है कि शॉपकीपर हमें कह के कि भाई आप बिल मत लो, बिल लोगे तो ये 10 रुपए महंगा पड़ेगा, 20 रुपए महंगा पड़ेगा, इसमें टैक्स लग जाएगा, इसमें ये लग जाएगा, इसमें वो लग जाएगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. एज अ कंज्यूमर जब भी कोई चीज परचेज करी जाए तो उसका प्रॉपर बिल लेना बहुत जरूरी है. अब कई बार क्या होता है 10-20 रुपए के चक्कर में जो कुछ पैसे के चक्कर में क्या करते हैं कई बार कि भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को क्या करना है, कच्चा बिल ही ले लेते हैं. भाई कच्चा बिल ले लेंगे लेकिन कच्चा बिल की कोई वो नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है. कच्चा बिल तो क्या, कल को आपके गुड में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो तो साफ साफ मना कर देगा डीलर तो कि भाई ये तो आप लाओ, बिल लाओ. क्योंकि किसी भी चीज को आपको आगे अगर क्लेम करना है, कंप्लेन करना है, कुछ भी करना है, तो आप कैसे करोगे जब आपके पास बिल ही नहीं है. तो सो बिल जो है कोई भी चीज हो छोटी बड़ी, तो कंज्यूमर को जो है वो बिल जो है वो लेना जरूरी है. After making a purchase, the consumer must ask for cash memo or the bill, as this is a proof of purchase which is necessary. If a consumer face any problem regarding the product after purchase, without the cash memo, the consumer will not be able to file a complaint or get compensation. The seller has to provide the customer with the cash memo after the sale of product, even the consumer does not ask for it. देखो सेलर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही कि उसको देना ही चाहिए.
ठीक है, चाहे कंज्यूमर मांगे ना मांगे। पर कई बार क्या होता है ना, वही जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्स बचाने के चक्कर में या पक्का बिल ना काटना पड़े, तो उस चक्कर में जो है सेलर भी है ना अवॉइड करता है कि चल ठीक है छोड़, बिल का क्या करना है। तो वो भी कंज्यूमर कई बार क्या होता है कि ठीक है आप भी सोचते हो कि चल कोई बात नहीं, हमने लिया है कोई बात नहीं भी बिल लेंगे। तो सेलर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टमर को, कंज्यूमर को जो है वो कैश मेमो प्रोवाइड करे, और कंज्यूमर की तो है ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसे बिल लेना जरूरी है, क्योंकि बिना बिल के, बिना प्रूफ के कोई आपकी कंप्लेंट फाइल नहीं करेगा। और अगर आप कल को कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है तो आप कैसे उस चीज को प्रूव करोगे? भाई सेलर तो कह देगा मेरे पास इस बिल दिखाओ, आपने मेरे से चीज ली, चीज तो मेरी है ही नहीं, आपने मेरे से ली नहीं, आप कैसे प्रूव करोगे? आप प्रूफ तो सिर्फ तभी कर सकते हो ना जब आपके पास बिल होगा। तो बिल होना बहुत जरूरी है। So every time a consumer purchase something, he should insist on cash memo or a bill. Exercise consumer right. अब देखो अभी हमने इतने सारे राइट्स पढ़े कंज्यूमर्स के, अब कंज्यूमर अगर उन्हें यूज ही नहीं करेगा तो फिर क्या फायदा है उन राइट्स का, राइट? तो कंज्यूमर को वो राइट्स हेल्पफुल ही नहीं है, अगर कंज्यूमर उन्हें प्रैक्टिस ही नहीं करेगा, वो अपने राइट्स के अगेंस्ट जाएगा ही नहीं, राइट्स को यूज ही नहीं करेगा, तो क्या फायदा है उसका? So consumer rights are not helpful if they are not exercised by the consumers. A consumer has many rights such as right to safety, right to choose, right to be informed, etc. A consumer must be aware of his right and must exercise them whenever required. तो जहां भी अभी हमने पढ़ा था कि कितने सारे राइट्स जो है वो कंज्यूमर के पास है, तो कंज्यूमर को जब भी कभी लगे कि रिक्वायरमेंट है वो अपने राइट्स को उसे यूज करना चाहिए, क्योंकि फायदा नहीं ना, अगर लॉज बनाए, राइट्स बनाए, बट उसका कोई यूज ही नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या हुआ उन लॉज और राइट्स को बनाने का? तो इसलिए कंज्यूमर को जो है वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज भी करना पड़ता है, सो दैट व्हेन एंड इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, फाइलिंग कंप्लेंट एंड सीकिंग रिड्रेसल। अब कई बार क्या होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि चल ठीक है यार, हो गया कुछ, कोई प्रोडक्ट आप लाए उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, कई बार हम लोग कैजुअल हो जाते हैं, कई बार सोचते हैं कि चलो ठीक है अब आ गया छोड़ो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ या कोई चीज आपको कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, तो बीइंग अ कंज्यूमर आपको जो है उस चीज को अवॉइड नहीं करना, कंप्लेन करनी है, ठीक है? तो क्या कंज्यूमर को जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी प्रोडक्ट में, ठीक है, कुछ गलत हो गया, कहीं पे भी आपको लगा कि आपके साथ मिसयूज हो गया एज अ कंज्यूमर, तो आपको जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेना, ये नहीं कि भाई अवॉइड कर दो। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंज्यूमर अवॉइड टू फाइल कंप्लेंट्स इफ इवन दे आर प्रोड्यूस डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स और डेफिशिएंट सर्विस. This encourage the corrupt businesses to keep supplying such a product. Definitely, अब भाई कोई सेलर ऐसा है जो क्वालिटी मतलब किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, किसी भी चीज में गलत यूज करके कस्टमर को गलत चीज बेच रहा है, ठीक है? अब हर कोई कंज्यूमर उस चीज को इग्नोर कर देगा कि चल ठीक है यार, अब छोटी सी चीज के लिए मैं क्या जाऊंगी या इसके लिए अब मैं क्या कंप्लेंट करूं, कैजुअल ले लेगा। तो फिर तो क्या होगा, सेलर जो है वो तो एनकरेज ही होगा ना कि वो वही चीज को करता जाएगा, सेल करता जाएगा, क्योंकि उसे पता है कोई कंप्लेंट। लेकिन अगर एक बार भी कंप्लेंट हो जाती है या एक बार भी उस पर एक्शन हो जाता है तो ही विल बी वेरी केयरफुल, और उससे क्या होगा, जो बाकी लोग भी बच जाएंगे उस चीज का शिकार होने के लिए। सो द aggrieved consumer must be file a complaint if the damage caused to them is very small. This will make the seller of such products more conscious to supply good quality product. Consumer must file a complaint for genuine loss only. The loss or the damage must not be aggravated. जो भी जो भाई जो लॉस हो वो जेन्युइन हो, ये नहीं कि घर पे आपको चीज लाए और आपसे टूट गई और आप उस चीज की कंप्लेंट करने चले गए, भैया ये चीज तो देखो कैसे खराब सी थी, हमें टूटी थी, वैसा थी। नहीं, जेन्युइन अगर कोई लॉस हुआ है तो उसकी कंप्लेंट जो है वो करनी जरूरी है। तो बीइंग अ कंज्यूमर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो कोई लॉस होता है या कुछ दिक्कत रहती है, तो कंप्लेंट करना जरूरी है। डोंट मिसलीड बाय एडवर्टीजमेंट। अब देखो जब हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट में तो क्या क्या दिखाया जाता है, ये चीज ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, वैसे हो जाती है, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि जो भी एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है वो सही हो, ठीक है? तो अब एडवर्टीजमेंट को देख के कि भैया एडवर्टीजमेंट में तो चीज कितनी अच्छी लग रही है और इसके यूजेस भी कितने अच्छे दिखाए हैं, तो ये चीज तो ऐसी ही है, मैं तो यही
लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। The consumer must not be carried away by advertisements. Seller try to increase the sale by product by uh, exaggerating exaggerating the quality of the product or services in the advertisements. Consumers should not be misled by the advertisements and use their own wisdom while buying the product. तो कंज्यूमर जो है वो मिसलीड नहीं होना चाहिए एडवर्टीजमेंट से, ठीक है। जो भी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट को बाय करे, अपने सोच के अकॉर्डिंग, अपने थॉट के अकॉर्डिंग जो है चीज को परचेज करे, एडवर्टीजमेंट से मिसलीड नहीं होना। बी अवेयर। A consumer must be aware about the variety of goods and services available in the market. They must select the product or service of their choice from the wide variety available. By doing so, consumer can compare the quality, price, design, etc. of the product and choose what is best suited for as per their need. अब देखो, मार्केट में एक ही चीज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, सबके प्राइसिंग भी डिफर करते हैं। मे बी कोई चीज आपको, कोई प्रोडक्ट जो है वो शायद आपको ओवर प्राइस मिल जाए और वो उसी का ही सेम सब्स्टिट्यूट कोई कम प्राइस में मिल जाए। तो कस्टमर जो है वो अवेयर होना चाहिए अबाउट कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, वैरायटी ऑफ गुड्स जो अवेलेबल है मार्केट में, सो दैट वो उन सबकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइसिंग को कंपेयर करके जो भी बेस्ट उसकी नीड को, रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है, वो उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग जो है वो परचेज कर सकता है। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी। देखो, कई बार क्या होता है कि अकेला एक कंज्यूमर जो है अगर एक, हम कई बार क्या होता है, हम कहते हैं एक से भले दो, दो से भले बहुत सारे लोग, तो वैसे ही जो है कंज्यूमर मस्ट फॉर्म अ कंज्यूमर सोसाइटी or an organization that could play an active role in educating the consumer and safeguarding their interest. Organized consumers may have the power to protect if they are being cheated. So, अगर हम बात करें तो ग्रुप में it can be better to deal with the problem as compared to one single person. Respect the environment. देखो, बहुत सारी, हमें पता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं, तो कंज्यूमर मस्ट रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट एंड अवॉइड every such activity that may pollute the environment. Wastage and littering should be avoided and all the necessary precaution must be taken by the customers to keep the environment healthy and clean. So consumer should not use that products which can harmful to the environment or nature. Honest in dealing. Consumer must be honest in their dealings. They must buy product or service which are legally available. Consumer must try to discourage black marketing. ठीक है, देखो कंज्यूमर जो है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, मतलब ऑनेस्ट इन द सेंस कि आप कंज्यूमर को भी उसी चीज में डील करना है जो लीगल हो, ठीक है। ये नहीं कि जैसे चल, मतलब एंकरेज नहीं करना ब्लैक मार्केटिंग को। तो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वो चीज करे वो एज पर द जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज बाय करे वो एक लीगल अवेलेबिलिटी के हिसाब से करे, ठीक है। जो भी गलत प्रैक्टिसेस फॉलो होती है, अनट्रेड फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो होती है, उनको एंकरेज ना करें, ठीक है। केयरफुल यूज ऑफ प्रोडक्ट. Sometimes consumer tend to become careless in handling or using the product after purchase. Consumer must be carefully use the product and take care good of them. अब देखो, जो भी प्रोडक्ट यूज किया उसको केयरफुली यूज करना भी कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये नहीं कि आप कोई एज अ, हम ये कहें कि भाई हम कोई चीज घर पर ले आए, उसके बाद हम उसको, चल अब तो घर पे आ गई है ना, चल कोई बात नहीं, फेंक दिया या उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट कंज्यूमर ने बाय किया है, ही मस्ट बी केयरफुल अबाउट यूजिंग देम एंड शुड टेक केयर, गुड केयर ऑफ देम। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने पढ़ी कंज्यूमर्स की, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा अबाउट कि कंज्यूमर क्या होता है, ठीक है, उसके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए।
ठीक है, एक छोटी सी क्विक रिवीजन लेते हैं आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है। सबसे पहले कंज्यूमर हमने क्या पढ़ा था कि ही इज अ पर्सन हु परचेज थिंग्स और सर्विसेज फॉर हिज ओन यूज एंड नॉट रीसेल इट फॉर कमर्शियल यूसेज। ओके, हमने कंज्यूमरिज्म के बारे में पढ़ा था। इट मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर एंड एक्सप्लॉइटिव ट्रेड प्रैक्टिस यूज्ड बाय द सेलर, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर। हमने राइट्स के बारे में पढ़ा था, कंज्यूमर के पास कौन कौन से राइट्स हैं। तो उसमें हमने 6 राइट्स के बारे में पढ़ा था। राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू हर्ट, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू बी एजुकेटेड अबाउट देयर राइट्स। तो ये 6 राइट्स जो है वो कंज्यूमर को दिए गए हैं। ये राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कंज्यूमर को पता होना चाहिए अपने राइट्स के बारे में। ठीक है, इससे वो उन सब चीजों से बच सकता है जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं। देखो, कुछ ऐसे भी बिजनेसेस और सेलर्स होते हैं जो मिसलीड करते हैं कंज्यूमर को, तो उन सब से तभी बचा जा सकता है जब आपको अपने राइट्स पता होंगे एज अ कंज्यूमर। सो कंज्यूमर राइट्स जो है वो, ये सब राइट्स जो है वो पता होने चाहिए कंज्यूमर को। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, कि कौन कौन से राइट्स हैं, व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। तो अच्छे से पढ़ना है इस टॉपिक को। ठीक है, सारे राइट्स जो है वो याद होने चाहिए और उनके प्रॉपर डिटेल में आंसर लिख कर आना है। ओके, उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द राइट्स हमने पढ़ा था कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? टू बी अ कॉशियस कस्टमर, टू बी कॉशियस अबाउट चूजिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, to always ask for cash memo after purchase of goods and services, to be aware about the availability of the product available in the market, to be aware about his rights and to be how to be use them, not to be misled by the advertisement and use own wisdom before making a purchase, to be able to file a complaint and seek redressal when required, to form consumer society and organization, to respect the environment. To respect the environment matlab the consumer should not buy the products which are harmful for the environment and the nature. Consumer should be honest in the dealing, मतलब legally जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेजिंग में डील कर रहे हैं, मतलब जो भी परचेज कर रहे हैं वो एक लीगल अवेलेबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को एनकरेज नहीं करना। To be careful in the using product and services, जो भी प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर शुड यूज इन सच अ वे कि वो केयरफुली यूज हो और जो है वो गुड केयर जो है उस प्रोडक्ट की करना कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कंज्यूमर की। तो बेसिकली आज हमने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़े, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो दोनों ही पूछे जा सकते हैं। राइट्स भी पूछे जा सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूछे जा सकते हैं। चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं था, तो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही कवर किए हमने इसमें। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, और डिटेल में है। सो सबके सारे पॉइंट्स जो है वो याद होने चाहिए और उसके बीच के जो ब्रीफिंग डिटेल्स हैं वो भी लिखनी है। कम से कम 2-3 लाइनें लिखनी है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देखो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनल एक्सरसाइजेस जो दी हुई हैं आपका, ये सब जो है आप इन यू शुड ऑल अटेंड ऑल दैट क्वेश्चंस, गो थ्रू करिए। ठीक है, कोई भी डाउट लगता है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आंसर्स भी नीचे दिए हुए हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो नीचे आंसर्स भी दिए हुए हैं, और अगर उसके बाद भी कोई इशू अगर लग रहा है तो आप प्लीज अपना डाउट क्लियर करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।